Good evening to my students. So, if you're able to hear my voice, just say hi in chat. So, first of all, very good evening to everyone. My name is Abhay Kumar, and I'm a program director in Institute of Real Estate and Finance. So, I'm going to be your trainer and presenter today in this session. So, if you're able to hear my voice, you can type yes in the chat. So, within 2 minutes, we'll start the session. If you're able to hear my voice properly, you can just put chat yes. Okay. Okay. So I'm going to give you a poll. So lots of you people are new to this presentation, new to this class. So for your knowledge, I will speak in English and Hindi. So मैं इंग्लिश में भी बात करूंगा और हिंदी में भी बात करूंगा. 70-80% इंग्लिश में बात करूंगा, 20-30% हिंदी में बात करूंगा. I hope it is fine for you. Or I will ask certain questions which you have to reply to me. Okay. So, hi Ajinkya, hi Balaji, hi Mayur, hi Srinivas, hi Sanket. Okay, great. So I can see people already joined in. Okay, so if you are new to the system, just remember one thing. If you are not able to listen me properly, or if you're not able to see me properly for any point of time, wait for some time and refresh your browser first. Okay. Even then, if you're not able to listen me or able to see me, put in the chat. Lots of time, if there is a challenge, it happens with the students. Okay. So even if two students or one student are able to listen me properly, it means the problem is not from our side or the trainer side. So lots of time it happens that the network is not good. So if you lose any connection, just refresh it. Okay. Or if you lose me while in talking or seeing it, just wait for 2-3 minutes. Okay. I must be refreshing my system, or I must be doing something. तो अगर आप ये सेशन को बीच में अगर रुकता है या आपको आवाज नहीं आ रही है, तो आप अपने ब्राउजर को रिफ्रेश कीजिए, रीलॉगिन कीजिए. अगर आपको मेरी आवाज कंसिस्टेंटली नहीं सुनाई दे रही है, तो ये आप प्लीज कीजिए कि बहुत बार प्रॉब्लम आपकी तरफ से होता है, बिकॉज आप अपने लैपटॉप से एक्सेस कर रहे हैं, मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं. हमारा सजेशन है कि सबसे पहले आप अपने लैपटॉप से एक्सेस करें, बिकॉज वॉइस क्वालिटी इज गुड देयर. सेकेंड, इफ अगर कंसिस्टेंटली मेरे तरफ से अगर आपको आवाज नहीं हो रही है या फोटो नहीं दिखाई दे रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप 2-3 मिनट का टाइम दीजिए. आई विल रिफ्रेश एंड कम बैक. And in between, if any light goes, disconnect happen, at least wait for 5 minutes. Okay, at least wait for 5 minutes, because this is a first platform. We are trying to connect people from across India through internet. Okay, so be a little patient, and if you face any challenges, just put in chat. Hi Sachin, hi Nandan, hi Yash. So सबसे पहले आपके your left side you can see chat is there and you will see questions. So अगर आपको कोई भी question पूछना है, तो you can put in chat or you can put in question. If you have to ask any question, you have to put in the question section or you can put in chat. I can able to reply it. It's a one-way communication. You can see me, you can listen to my voice, but I can't see you and I can't listen to your voice. The only way I can communicate to you is through chats and through polls and through questions. Okay, since there are multiple people there, okay, this platform is very stable.
and it is given by one of the best companies, IT companies in India. So don't worry about that. Okay. So I'm going to ask certain questions before I start a class very fast so that I. So my first question is this your first session? ये अगर ये आपका पहला सेशन है आप लिखिए. Just put in question. Great. So able to. So Mani, I think he has done 2 sessions, and Mani, it's a same session. I think if you've completed this session in morning, it's the same session. So I'm repeating the session. If you want to go through the session, most welcome. And I can see 90% people having this is a first session for them. Okay. So welcome from Institute of Real Estate and Finance. Hi, Navdeep. Yes. So Mohammed, you can put this in chat. Okay. You don't need to do it in questions. You can put this in a chat. I can able to see. You can also chat me individually. So I've asked you second question. You are from which city? So we can able to see that you are from which city. Just put your city name. So I'm seeing lots of people are from Mumbai, but we have people from other parts of India also. Good to know. Okay, great. So we have lots of people from Pune and Mumbai. Okay, you are from Rajamundry. Great. And the last question I'm going to ask you. What is a experience and education? There is spelling mistake. So what is the experience and education? Okay, so sorry for that. Just put your experience, 5-year, 10-year experience, and what is the education qualification? If you have any experience and education, so that I know what kind of experience you have. Okay. Vijay, 6-year experience. Mohammed, how many experience you have? Samarjeet Mandal, 15-year experience. Rajnikant is fresher. Sanket, 1-year diploma experience. Navdeep, 12-year experience. Great. Navdeep, you are from which city? I'm not seeing your city. Sorry, I just forgot. Navdeep, you are from which city? Just put in chat. You are from which city? Navdeep Chauhan, just put your city, please. Okay, so we have people from across India. We have people who are civil engineers, BCom graduates with medical degree I'm seeing here. So we have very vast experience. And first of all, I like to congratulate that you have opted for this program. This is the most important program for any professional who is into real estate, whether civil engineer, architect, designer, anybody who want to learn, who want to get into real estate. RERA is now. Okay, Navdeep is from Mumbai. Great. So before I go forward and before I introduce myself, okay, what matters to you is this document which I'm sharing. So this document which I'm sharing is by Government of India. It is Standing Committee report
the first report tabled in Rajya Sabha for real estate bill. This is the first bill, structured bill, okay, placed in Rajya Sabha. So I'm not going to show you the bill actually. What I'm going to show you is that it passed. They have created an entire roadmap. They've created suggestions, and they have worked very hard to create this entire real estate regulation bill. If somebody think that previous to this bill, I used to think that, there are a few people who are working on it and they just created. But when I got introduced, or when I got to know about this, how this entire thing or entire bill has came up, okay, it is a huge work from lots of industry people. So this is the report which I'm going to share with you. Where is you are new to real estate abroad. Okay, so this is a okay. So see, it is presented in Lok Sabha and laid in Rajya Sabha, okay, around February 2014. So this report is basically presented in Lok Sabha after they have passed out from Rajya Sabha. This is the first report. Why I'm showing you is because of this. Okay, so it has given what is the rules and regulation, what is the functions, duty, rights. They have given everything about the real estate law, and they have given the recommendation. So this is actually recommendation from the entire industry, from the government, from the legal fraternity, from the politicians, and then they have tabled it to Lok Sabha. So if you see, this entire program was actually chaired by Sharad Yadav. He's very well-known politician, and there were almost 30 Rajya Sabha members, almost 21, almost 20 Rajya Sabha members and 20 Lok Sabha members and 10 Rajya Sabha members were involved. Almost 25 people were involved in building this and in understanding this. Why I'm showing you? So we were the first institution, we were the first people to send a letter in 2013 to the government that this is what RERA should look like. So if you see here, okay, so organization individual who has submitted a written memorandum. So if you see number 8, okay, if you see number 8, if you see this number 8, okay, Institute of Real Estate and Finance in Abhay Kumar. So at that time, I was very young, approximately 32, 33, and I had this strong feeling that if Indian real estate has to improve, they have to have a law. They have to have government focus to regulate this. Okay, and that's why I was the youngest professional in the team telling something to the government about real estate. And because of that, getting time to upload, just hold on. Just getting it again. Okay, so because of that, Government of India actually invited Institute of Real Estate and Finance and me to come to Rajya Sabha and present my case in front of the committee member. So they invited 20 people from across India. Okay, so this is on, if you see 6th November, morning 11 o'clock, we had a meeting where there were chairman like Sharad Yadav, Lok Sabha member, Rajya Sabha member, joint secretary, director of real estate, and very big personalities from like Raheja, Rajiv Talwar from NAREDCO. Okay, we had Lalit Kumar Jain, chairman, Kridai. And if you see at number 11, Shri Abhay Kumar, Institute of Real Estate Finance. Okay, so it was my privilege. I never thought that they will call a young guy like me to tell what I believe, what I feel about real estate. And I will not say that that few of the advice which gave very strongly,
they have incorporated in this RERA. The advice was very generic and everybody was agreed to it. Okay, so we believe that we have, have shown some path to like-minded people that this point should be there in the RERA. So there are some points which we have told government or which we have said that this should be there. Certain parts government has taken and they have notified also long back. But this is just to share that as an individual and as an institute, we are involved with RERA from very long, more from academic perspective. But I believe RERA is a very big change in the entire real estate industry. तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें रेरा का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है. और जब मैं पहली बार लोकसभा गया, उनकी टीम से मिला, तो मुझे ये समझ में आया कि गवर्नमेंट रियलाइज करती है कि रियल एस्टेट सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट और कितना इम्पोर्टेंस रखता है पूरी इकोनॉमी के लिए. ओके, सो उनको भी पता था कि ये चीज आनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन डिफिकल्टी इट वाज टेकिंग लॉट्स ऑफ टाइम. So finally, it got implemented in 2017, which we'll see there. Okay, so this is to share that the relevance that why I am telling you about RERA and from where I'm coming. So you can easily say that our understanding of RERA is almost 8 years back. And ये भी मैं आपको बता दूं, जब ये हमें बुलाया गया था तो हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि ये रेरा में लॉ बनेगा नहीं बनेगा, बनना कैसे बनेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग इसके अपोज में थे. Okay, बहुत सारे डेवलपर्स, बहुत सारे लोग जिनका पैसा था, they don't want to this law to be there. Okay, और ये fact है. Okay, so but at the end of the day in 2017 it got implemented in India. So this was a whole thing. Okay, now I like to continue the presentation for which all are here. So मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया रेरा के बारे में, कब शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ. Okay. Okay, good. So are you guys with me? अगर आपको मेरी प्रॉपर आवाज आ रही है, आपने अभी पूरा मेरा स्लाइड देखा है, तो just put yes in chat so that I know you are with me. Okay, just put yes in chat so that I know you are with me and you are able to listen it properly. Yes, great. So now let's start with, so this is going to give you a basic overview. It is not in depth. So next other 3 session will give you in depth knowledge, but ये session आपके लिए बहुत important है because this will give you an overview why RERA is important, what is present status, and why should we learn about it. So it will set a stage for that. Okay, so this is first platform where you get introduced with RERA. Okay, so as you know that I am one of the co-founder of Institute of Real Estate and Finance, and I'm also a program director in Institute of Real Estate and Finance. So this is my introduction. Few people know me. I think I have a few of my colleagues, my team members also coming here and learning RERA today. So my name is Abhay Kumar. I have done my BTech in mining from BITS Dhanbad, and I did my MBA from HR from Symbiosis Pune. I've also done my master's in law from Symbiosis Pune. I have started my journey in 2004. 3 years I worked in companies like Satyam Computer, Citibank, Inco. I had a global exposure. I went to UK and South America for work. Okay, once I realized that I want to become an entrepreneur, 2006 में I started my first company called rentbazaar.com. It's mix of OLX and Makaan.com, something, or OLX plus Magic Bricks. But we failed, and then we moved into real estate. So in 2008, we started the first company called Advise Realty,
which was at a time one of the largest company in India for project marketing. So we work with lots of developer managing their projects. Okay, we have more than 40 employees in Pune and Baroda, and we manage more than 25 projects for developers. Then we started a real estate wealth company. 2013, we became developer. We have invested in a couple of real estate companies in Pune. We have almost 3 lakh of square foot of work in Pune. Okay. Since I had a background of education, I had a great passion. So I started a technology company called Rank Skill and Brex, which got national awards also. Because of my passion towards education, technology, and real estate, this institute was formed in 2010. Okay. And now we have a full-fledged campus in Pune, where we have more than 50 students studying real estate, construction, and finance. Because of that, we have received various awards from NDTV, from Devang Mehta, Lokmat, couple of magazines, and few awards to be mentioned that we have got NASSCOM Social Innovation Award, which is a body of IT companies in education and technology. I've also got invited by government in RERA, and I was program director for real estate management program in Symbiosis Management Studies for 2016 to 2019. Okay, so that is my brief basic understanding. I have lots of other things to share, but I think this is good enough to create a platform to understand from where I'm coming. So I'll just give you a little brief about IRF. So IRF started in 2010. 2013, we started an e-learning platform. We also become a member of NERDCO. 2013-14, we got various awards. 16, we started with Symbiosis and started our first Masters in Real Estate Management program. And 2019, we started our own campus in Pune with the help of Lincoln University, Malaysia. We have an international program running in real estate, which is one of the best program in India. Okay, so अभी आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर. So अभी आपको पूरा आइडिया आया है, because since अभी आप मेरे साथ नेक्स्ट 4-5 सेशन और रहने वाले हो, तो you will able to understand more of my perspective from where I'm looking into it. So traditionally, I'm not from a real estate background. None of my family members are from real estate. I'm into real estate because of my own passion, and I realize that, and I have a strong belief that real estate has lots of opportunity for everyone. So मैं real estate में सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे real estate के लिए passion है, और मैं समझता हूँ real estate में बहुतों के लिए बहुत सारी opportunities हैं. Okay, and मेरे पूरे खानदान में कोई भी real estate में नहीं है. Okay, so अभी हम आज के presentation को 3 भाग में divide करते हैं, 3 parts. Past देखेंगे, अभी से पहले रेरा क्या था. Present देखेंगे, present में अभी क्या है, और स्पेशली हम फोकस करेंगे महारेरा पे, बिकॉज महारेरा इज इंडिया का नंबर 1 रेरा है जिसको बाकी लोग अप्लाई करते हैं, कॉपी करते हैं, और काफी जो रेरा है उनको जो यहाँ हो रहा है उसी कॉपी पेस्ट करके वहां लेके जाते हैं. ऑन फ्यूचर में हम क्या देख रहे हैं, फ्यूचर कैसा होगा, क्या चीजों पे ध्यान रखना चाहिए. ओके, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो क्या चीजों पे आपको ध्यान रखना चाहिए, ये इससे आप जान सकते हैं. कंसल्टेंट हैं. Good evening, Mandar. Good evening, Sanjulika. Okay, so let's start moving towards. So सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि रियल एस्टेट सेक्टर में इतने बड़े लॉ लाने की जरूरत क्या पड़े. इसके लिए आपको कुछ आंसर्स आपको खोजने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे. ओके, इसमें से एक क्वेश्चन जो मैं पूछता हूं और जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वो आप ही जवाब दोगे. Do you think that real estate sector is most in sector? So मैं आपसे क्वेश्चन पूछा है सिंपल सा. Do you think that real estate sector is the most inefficient sector in India? अगर आप इसका जवाब दे पाएंगे तो काफी चीजें एक पर्सपेक्टिव में आप लेके आ सकते हैं. राइट. डू यू थिंक आप यस करो, नो करो, आप लिखो, आपको जो भी लिखना है. ओके, आपको लगता है यस कि ये इनएफिशिएंट सेक्टर है तो आप लिखो यस. अगर आपको नहीं लगता है तो राइट लिखो नो.
ओके, सो कुछ लोगों ने नो का आंसर दिया, कुछ लोगों ने यस का आंसर दिया। ओके, सो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये टॉप नहीं है तो टॉप 3 में तो पक्का आता है एज ए इंडस्ट्री। ओके, और मैं तो इसको टॉप में भी समझता हूँ बिकॉज द काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वी हैव। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। हमारी जो इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, वो $180 बिलियन की है आज के लेवल पे। $180 बिलियन, 1 बिलियन में 6,000 करोड़ रुपए होते हैं। ये पूरी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। अगर कोई भी सेगमेंट या कोई भी सेक्टर इफिशिएंट है तो वहां पे नेचुरली कोई भी एक कंपनी 10-20% की ओनरशिप में रहती है। मतलब ये हुआ कि अगर आप इंडिया में टेलीकॉम की बात करें तो टेलीकॉम में कोई भी एक कंपनी, रिलायंस, 20% मार्केट शेयर होगा उसका। अगर आप साबुन की बात करें, शायद लिरिल का 5% होगा। तो किसी भी अच्छे स्टैंडर्ड सेक्टर में कोई भी एक कंपनी स्केल कर पाती है। ओके, सो एवरेजली 10-15% मार्केट शेयर रहता है। अभी आप किसी भी इंडस्ट्री को, आप एयरलाइन को देख लो। एयरलाइन में अगर आप बात करोगे स्पाइस जेट, तो शायद 8 से 10% उस मार्केट का होगा, बिकॉज इफिशिएंट सेक्टर है, वो ग्रो कर रहा है बहुत फास्ट। ओके, आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप चैट में सीधा डालिए कि आप क्या, आपको मालूम है कि अगर पूरे रियल एस्टेट इकोनॉमी सपोज ₹100 की है, तो सबसे बड़ा जो डेवलपर है इंडिया का, वो कितने रुपए का बिजनेस कर रहा है पूरे इंडिया में और कितना मार्केट कैप्चर कर रहा है? सो माय क्वेश्चन टू यू, it is ₹100. Tell me the maximum market size captured by an Indian real estate company. Percentage, 1%, 5%, 20%. Tell me that. अगर कोई भी आइडिया, just put in chat. So Prashant says 0.5. Good. Other people just put in chat कि ₹100 में से कितने परसेंट सबसे बड़ा जो प्लेयर है, एग्जांपल लोधा, डीएलएफ, पूर्वांकरा, कितने परसेंट वो ओन करता है, कितना परसेंट होता है उसके पास, क्या उसका मार्केट शेयर है? ओके, तो काफी लोगों ने वेरिड आंसर दिए हैं। गुड टू नो। मैं आपको बताता हूं एक स्टोरी। गोदरेज प्रॉपर्टीज, आपको मालूम होगा, पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज साबुन बनाती थी, लॉक्स बनाती थी, चेबल टेयर बनाती थी। अभी गोदरेज प्रॉपर्टी, गोदरेज, सॉरी नॉट प्रॉपर्टी, गोदरेज। ओके, अभी गोदरेज की पूरी ग्रुप कंपनी का जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो है रियल एस्टेट। गोदरेज कंपनी ने अपने विजन में कहा है, और मैंने पढ़ा है कहीं पे, कि वो कुछ साल में पूरे इंडिया का अगर 5% मार्केट भी कैप्चर कर पाए तो वो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी बन सकते हैं। 5% मार्केट भी। ओके, 180 बिलियन का 5% आप समझ लीजिए कितना होता है रेवेन्यू वाइज में पर ईयर, अगर आप पहुंच पाए तो। पूरे इंडिया में सबसे बड़े मार्केट प्लेयर भी 0.5 से 1% से ज्यादा नहीं है। अब कैसे? लोधा इज ओनली इन मुंबई, पुणे में नहीं है, मुंबई, कोलकाता में नहीं है, बैंगलोर में नहीं है, चेन्नई में नहीं है। डीएलएफ ओनली इन गुड़गांव। सो अगर आप देखोगे तो ये जितने भी पावर हाउस है वो एक ही जगह पे है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि 99% जो प्लेयर्स हैं वो लोकल है। तो जैसे ही नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ते हैं, लोकल प्लेयर्स बढ़ते हैं, अपने आप पूरा सिस्टम इनएफिशिएंट बन जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इनएफिशिएंट सेक्टर। सेकंड, you all are civil engineers, all are well educated people. I'll ask you one more question. Now this is very serious question to all of you. आप सब रियल एस्टेट में, मुझे आप बताइए कि आप अपने बिजनेस में, रियल एस्टेट में, स्पेशली कंस्ट्रक्शन में, ओके, ऐसा क्या यूज करते हैं जो इंडियन कंपनी ने बनाया हो, इंडियन इनोवेशन हो, कंपनी नहीं, इनोवेशन इंडियन हो, इंडियन लोगों ने इनोवेट किया है कुछ रियल एस्टेट में। अगर आपको पता है तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। नो 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 नो। Do you think, or do you have ever used any product which is innovative and made by an Indian company for a real estate sector in construction? अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो so everybody says no. Think about $180 बिलियन का मार्केट, इतना बड़ा मार्केट, और हमारे पास एक अपनी इनोवेशन करने की पावर नहीं है, बिकॉज हम सब कुछ बाहर से लेते हैं। हमारा जो माइवन टेक्नोलॉजी है, हाई स्केल है, हमने बाहर से पिक किया है। ओके, नई चीजें आती हैं, आईओटी आता है, कुछ नए टेक्नोलॉजी आता है, हम बाहर से देखते हैं, इंडिया में लेके आते हैं।
India do copy paste of what we do in Dubai, what we do in Singapore. Okay, because they are advanced than us. Okay, but Indian market is different. Their mindset is different. We need Indian innovation, right? So अगर लोकल लेवल पे लोकल रिसर्च नहीं होगा, लोकल इनोवेशन नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स लोकल इनएफिशिएंसीज होंगी. हमारे पास मैनेजरियल माइंडसेट, मैनेजरियल लोग नहीं है. हम अगर आप देखोगे तो 100% कंपनीज जो काम करती है रियल एस्टेट सेक्टर में, ओनली 20% जो ओनर्स हैं वो प्रोफेशनल्स हैं. मतलब प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं या ग्रेजुएट भी हैं. 80% ओनर आर लैंड ओनर्स, some other businessmen. Okay, so if their core business is not real estate, how they will improve it? लोकल लेवल पे अच्छे मैन पावर नहीं मिलते हैं. हमारी वी आर वेरी हाईली डिपेंड ऑन ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो वी जस्ट शेयर्ड. नो ग्रास रूट लेवल ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, नो सपोर्ट फॉर रियल एस्टेट सेक्टर स्टार्टअप सिस्टम. जैसे आईटी में है, टेक्नोलॉजी में है, और भी किस सेक्टर में है, यहाँ पे स्टार्टअप कुछ है ही नहीं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू बिकम आवर सेक्टर मोस्ट कॉम्प्लेक्स is our legal system. Legal make it more complex. हमारा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी नेशनल गवर्नमेंट रेरा लेके आता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करता है, लोकल बॉडी के कुछ और लॉ. तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है लीगल के कारण से और कॉम्प्लेक्स हो जाती है. बिकॉज ऑफ दैट वी हैव अ वेरी ह्यूज इनएफिशिएंट सिस्टम इन इंडिया. एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ऑफ दिस वी आर सो एंगेज्ड विथ ऑल दोज थिंग्स, वी नेवर फोकस ऑन कस्टमर. कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या पसंद है, उसकी प्रॉब्लम होगी तो कौन सॉल्व करेगा. आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन मोबाइल फोन, you expect your mobile phone company to replace it. You expect your mobile phone company to repair in 5 days, 5 hours, or within quick time. Okay, you just call them up, go to their office, they do that. Do you have any kind of mechanism where there is a problem with you, you go to developer and developer talk to you and then they solve it? It takes months and months of time, and you are paying lakhs and lakhs of rupees. So this shows that this entire system is not focused towards consumers, not focused towards. तो इसीलिए हमें कुछ ऐसे लॉ की जरूरत थी, हमें कुछ ऐसे चीजों की जरूरत थी, गवर्नमेंट के फोर्स की जरूरत थी, जिससे कि ये 99 लोग जो अपने मन से काम कर रहे हैं, जो कंपनी के फॉर्मेट में नहीं है, वो फॉलो अप करें और एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोसेसेस बनाएं. इसी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स की वजह से. और वो क्यों बनाए गए? गवर्नमेंट ने जो रेरा बनाया उसका कुछ बेसिक काम है. क्या काम है? सबसे पहला काम है अकाउंटेबिलिटी. कि भाई अगर आप डेवलपर हो, अगर आप कंसल्टेंट हो, अगर आप खरीदने वाले हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकाउंटेबिलिटी. आपको ये काम करना ही करना है. सो इन रेरा देयर आर 3 पिलर्स हु आर बेसिकली मेन कोर behind, main force behind RERA. Developer first, second buyer, third real estate consultant. These are 3. So इनको बोला गया कि भाई आप अकाउंटेबल रहो, स्पेशली डेवलपर. ओके, अकाउंटेबिलिटी इज फर्स्ट थिंग. आपने जो बोला है आप वो करो. सेकंड, ट्रांसपेरेंसी. आप जो बोल रहे हो वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, आप सारा डेटा दिखाओ. सेकंड, प्रोफेशनलिज्म. कि भाई आपको एज इंडस्ट्री प्रोफेशनल बनना पड़ेगा. थर्ड, इंफॉर्मेशन शेयरिंग. आपका जो इंफॉर्मेशन है सबके पास होना चाहिए. फोर्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल पीपल डिफाइंड प्रॉपरली. सॉरी, फिफ्थ, सिक्स्थ, अगर कोई इशू होता है तो देयर शुड बी मैकेनिज्म टू सॉल्व इट. अगर एक डेवलपर की कस्टमर से लड़ाई हो गई, अभी क्या था, सबके सब एक ही कोर्ट में चले जाते थे. तो अगर आपके टीवी खराब हुआ तो भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, अगर आपका मोबाइल खराब हुआ है तो भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, अगर आपका घर का कुछ प्रॉब्लम तो भी कंज्यूमर कोर्ट में जाओ. दिस वॉज नॉट जस्टिफाइबल. तो उन्होंने बोला कि भाई हमें मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए. ओके, सेवंथ, इसको फास्ट ट्रैक कैसे किया जाए, कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे मूव किया जाए, इसके लिए मैकेनिज्म बनाया. एंड लास्ट इज गुड गवर्नेंस. कि हमारी इंडस्ट्री का जो चेहरा है वो अच्छा लगे. हमें जब लोग पैसे डालें हमारे कंपनी में, जब लोग इन्वेस्टमेंट करें तो उनको लगे कि ये कंपनियां इन्वेस्टमेंट के लायक है. तो गवर्नमेंट ने कंपनीज के बारे में सोचा, डेवलपर्स के बारे में सोचा, बिजनेस के बारे में सोचा, इसलिए ये पूरा एक्ट लेके आया. ओके, सो जस्ट टू गिव यू अगेन अ क्विक रिव्यू. तो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्रोफेशनलिज्म, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी,
रेगुलेटरी मैकेनिज्म, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड गवर्नेंस, ये की फैक्टर थे. बिकॉज ऑफ दैट रेरा गॉट इम्प्लीमेंटेड इन द इंटायर सिस्टम. ओके, एंड लेट मी टेल यू, अगर आप ये आप चैट में बताओ, अगर आप एक 100 रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हो, ओके, तो आप गवर्नमेंट को कितना पैसा दे रहे होते हो हर लेवल पे, एक आप अंदाजा बताओ. पुट इन चैट, अगर आप 100 रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आप गवर्नमेंट को कितना पैसा दे रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट है. ये कितना टैक्स आप देते हो, कितनी चीजें आप गवर्नमेंट को दे रहे हो 100 रुपीज में. ओके, 8%, 2%, 10%, ओके, 7%, 25%. ओके, सो आप सबको मालूम है कि हम दो तरह के टैक्सेस देते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, अभी जीएसटी के कारण बहुत जगह पे जो है आप मिनिमम 6% तक आप सेट ऑफ लेके 6% तक रहता है. ओके, बट गवर्नमेंट क्या लेती है आपसे, आपका स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट के पास जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस गवर्नमेंट के पास जाता है, आपका जीएसटी गवर्नमेंट के पास जाता है. अगर आप इसको देखेंगे तो 6%, एक 7% और 6%, ऑलमोस्ट कम से कम 13% तक आप गवर्नमेंट को देते हैं. सो थिंक अबाउट ए सिनेरियो, जब आप एक 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप 5 लाख रुपए सीधा गवर्नमेंट को दे रहे हैं. ओके, तो अगर मैं इसको इकोनॉमी की बात बोलूं तो आप सोचो इस $180 बिलियन में अगर 10% की इकोनॉमी भी रेजिडेंशियल हुआ, 10% ही रेजिडेंशियल हुआ, जो कि $1.8 बिलियन की है, और उस 10% का भी आप सिर्फ 10% निकालो, मतलब $18 बिलियन. ओके, 20% ऑफ 6,000 करोड़ रुपीज, जो करीब करीब होता है आपका कुछ 1500 करोड़ के आसपास. तो 1500 करोड़ के आसपास सिर्फ गवर्नमेंट को मिलता है स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन से, जो कि मैं बहुत कम बता रहा हूँ, बहुत बहुत कम बता रहा हूँ. ओके, तो इसीलिए गवर्नमेंट को भी मालूम है कि अगर इस सेक्टर को रेगुलेट नहीं किया तो हमको ठीक से पैसा नहीं आएगा, अगर रेगुलेट नहीं किया तो हमारा भी लीक होल है. ओके, सो इसीलिए ये इनके लिए भी इंपॉर्टेंट था कि इस पूरी इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाए. ओके, सो मयूर, हाँ, सो मयूर, जैसे मैंने बोला कि आप एक घर के ऊपर 1% रजिस्ट्रेशन लगाते हो, ओके, 7% तक आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस और टैक्सेस लगाते हो, ठीक है. उसके बाद आप 6% तक जीएसटी लगाते हो. ओके, तो 1% रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी आपका 6% के आसपास आ गया, और टैक्सेस भी 6%, तो आप 13% के आसपास पैसा दे रहे हो गवर्नमेंट को. और ये पैसा अगर पूरे इंडिया में कैलकुलेट किया जाए तो बहुत बड़ा पैसा है. इस पैसे को तभी आ सकते हैं जब जब कस्टमर ठीक से पैसा दे रहा है और हमारे रियल एस्टेट डेवलपर ठीक से पैसा ले रहे हैं और गवर्नमेंट को दे रहे हैं. वो तभी दे रहे हैं जब वो राइट टाइम पे डिलीवरी कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स की, वो राइट टाइम पे प्रोजेक्ट्स को बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है. तो अगर आप देखोगे तो रेरा से डायरेक्टली गवर्नमेंट को बहुत फायदा है, जितना पैसा वो कमाते हैं. ओके, तो इसका मतलब ये था. समझ में आया क्या मयूर? कैलकुलेशन ऑफ 13% बताया मैंने. 1% स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्टर सॉरी 1% रजिस्ट्रेशन, 6% स्टैम्प ड्यूटी एंड 6% जीएसटी सेट ऑफ. 12% जीएसटी है, उसका आप सेट ऑफ करके 6% तक आपको मिलता है, तो इसलिए ये ऐसा है. ठीक है, सो गवर्नमेंट टेक्स जीएसटी. सो सचिन, राइट, सचिन ने सही बोला अभी. जीएसटी जो है वो 2% से 6% तक वेरी करता है. फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग इट कैन बी 2%, फॉर प्रीमियम हाउस इट कैन बी 6%, आफ्टर सेट ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट. आगे बढ़ते हैं. तो ये रीजन है, आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट से हमारे लिए कर, नहीं नहीं, गवर्नमेंट को भी फायदा है इससे, गवर्नमेंट पैसा कमा रही है. अगर आप ठीक से काम करोगे गवर्नमेंट और पैसा लेके आएगी. ओके, और पैसा उसको मिलेगा. ओके, तो अभी देखते हैं फास्ट में कि गवर्नमेंट ने कब शुरू किया था ये पूरा काम. तो रेरा जो है सबसे पहले 2008, आज से 12 साल पहले रेरा शुरुआत हुई थी. ओके, एंड इट स्टार्टेड इन यूपीए गवर्नमेंट. जब आपकी मिनिस्ट्री ने बोला कि हम एक पेपर बनाते हैं रेगुलेशन पे. 2008 के बाद करते करते 2013 में ये बिल डेस्क पे गया राज्यसभा में. 2013, 2014 में ये गया लोकसभा में. ओके, और 2014 के बाद ये वापस
कमिटी के पास आया अप्रूव होके 2015 में, ओके, और 2016 में ये फाइनली पास हुआ कि भाई अब इसको पास कर दो आप, ठीक है, ओके. So 2016 it got passed in Rajya Sabha, okay. Then state government rather then president had given assent कि किसी भी बिल को आने से पहले president बोलता है. तो 2016 में president ने बोला कि आप इसको implement कर दो. Implemented, they have implemented this in 2016 and actually finally in 2017 in April and May it got implemented across India. So technically अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इसको 9 साल लगे एक्चुअली काम करते करते लॉ बनने में, एंड बाय गोइंग थ्रू वेरियस चैनल, ओके. सो इट वाज नॉट अ डे वन टास्क. सो अगर गवर्नमेंट 9 साल लगा रही है इस बिल को बनाने के लिए तो दे आर वेरी सीरियस, दे वांट टू टेक इट अहेड. और अभी हम देखेंगे इसका स्टेटस क्या है. तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने बोला ये सब करने का फायदा क्या है. तो एक फायदा तो मैंने आपको बताया, डायरेक्ट फायदा बताया जो है गवर्नमेंट का. उसके अलावा क्या है? उसके अलावा सबसे बड़ा फायदा है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके. अगर आपका सेक्टर स्ट्रांग है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, तो लोग एफडीआई भी करेंगे. और लास्ट 3 साल में काफी एफडीआई आया है, और गवर्नमेंट ने तो भी 100% एफडीआई कर दिया है कि आप पूरा पैसा बाहर का डाल सकते हो रियल एस्टेट में, बिकॉज ये रेगुलेटेड हो गया है अभी, ओके. सेकेंड, कस्टमर मैनेजमेंट की, भाई कस्टमर फोकस बढ़े, इसका कस्टमर की तरफ ध्यान जाए, ओके. अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाई कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप मुझे बताओ कि कितने ऐसे डेवलपर हैं जो पूरा प्रोजेक्ट बिना कस्टमर के पैसे लिए कंप्लीट करते हैं. जस्ट से परसेंटेज कितने, हाउ मेनी डेवलपर्स आर देयर व्हिच कंप्लीट द प्रोजेक्ट विदाउट टेकिंग एनी सिंगल मनी फ्रॉम द कस्टमर. मतलब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, उसके बाद कस्टमर से पैसा लिया. परसेंटेज में बताओ. श्रीनिवास से 0, यश से 0, राघवेंद्र से 0 0. सो अगर आप रियली पूछोगे, रेजिडेंशियल मार्केट में 0 है. रेजिडेंशियल मार्केट में कोई भी अपना पूरा पैसा लगाता नहीं है. कमर्शियल मार्केट में फिर भी आप पैसा लगाते हो, अपना खुद का पैसा लगाते हो, ओके. कुछ पैसा लगाते हो बट आपके पैसे आते रहते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप कस्टमर से पैसा ले रहे हो अपना काम करने के लिए. तो ये रियल एस्टेट एक ऐसा पहला प्रोडक्ट है जहां पे कस्टमर अपना प्रोडक्ट बाय कर पेइंग यू, ओके. अब ये अगर आप ये सोचो कि अगर एक 20% पैसा अगर आपने लगाया है, 80% कस्टमर ने लगाया है, तो 80% पैसा जो कस्टमर लगाया है, इसका लोन कौन दे रहा है? हु इज गिविंग लोन फॉर दिस 80% पैसा? आई एम आस्किंग यू. बैंक. कौन किसको दे रही, किस पे लग रहा है? मतलब क्या आप अपने पॉकेट्स दे रहे हो? बैंक किस, आर यू गिविंग और कस्टमर इज गिविंग? Who is giving loan? Who is taking loan? You are taking loan or customer is taking loan? Customer. So think about a scenario, and very good scenario. Customer is taking loan to fund your business. Why? Because you are taking money to build your business, which is real estate. So this is a unique concept. So that's why in real estate, your customer is your investor. आप एक कस्टमर आपका एक इन्वेस्टर की तरह ट्रीट होता है. कस्टमर से आप पैसा ले रहे हो अपने बिजनेस को चलाने के लिए. And that's why real estate is very unique and everybody wants to come into real estate. कि भाई जहां ऐसी कौन सा बिजनेस है जहां पे कस्टमर आपको पैसा दे रहा है आपके बिजनेस रन करने के लिए और कस्टमर लोन ले रहा है उसके लिए. गिव मी वन केस स्टडी ऑफ एनी बिजनेस विच सच बिजनेस केस. अगर है तो आप लिखिए कि सर ये इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है. एंड दैट्स व्हाई लॉट्स ऑफ पीपल विथ लेस मनी, नो मनी, दे कम टू रियल एस्टेट. आई विल नॉट से नो मनी, ओके, बट यस, percentage wise, मतलब opening a factory, a big factory and opening a real estate have a different ball game altogether. So customer एक बहुत important है, customer is your investor. So customer management करना बहुत जरूरी है. customer खुश है, वो ज्यादा पैसे डालेगा और ज्यादा बिजनेस को लेके जाएगा. इससे ये फायदा है. थर्ड है टाइमली कंप्लीशन. अगर कंप्लीशन टाइम पे है, ओके, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान एक बेसिक नीड है, तो बेसिक चीजों को टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, ओके, क्योंकि और इसके लिए कस्टमर पैसे डाल रहा है, तो टाइमली कंप्लीशन होना चाहिए. इसका एडवांटेज क्या है? अगर आपने टाइमली कंप्लीट नहीं किया तो आपको पेनल्टीज होगी. प्रोजेक्ट प्लानिंग, कि भाई प्रोजेक्ट प्लानिंग पे फोकस होना चाहिए, हर चीज को देखना चाहिए, क्वालिटी देखनी चाहिए, सेफ्टी देखना चाहिए. ट्रांसपेरेंसी ऑफ डेटा, कौन कहां क्या कर रहा है, कब घर मिलने वाला, इसका प्रॉपर एडवांटेज हुआ है अभी. एंड रिडक्शन इन लिटिगेशन.
क्योंकि अब सब डेटा ऑनलाइन है, सब थोड़ा डरते हैं, तो भी लिटिगेशन नहीं है, और लिटिगेशन है तो यू कैन गो टू रेरा। तो रेरा के जो फायदे हुए हैं अभी तक, उसमें एफडीआई बढ़ गया है, कस्टमर खुश है, टाइम पे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, प्रोजेक्ट की प्लानिंग अच्छी हो रही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, और लिटिगेशन कम हो गया है। ये है इसके बेनिफिट जो अभी तक हमने रेरा में देखे हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस? अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस है पूछने के लिए तो आप प्लीज चैट पे डालिए, मैं भी नेक्स्ट पे मूव करूंगा, जिसमें कि आपको पूरे इंडिया में क्या हो रहा है उसके बारे में समझ में आएगा। तो अभी जो रेरा में नए थे उनको बेसिक समझ में आया कि रेरा क्यों बना था, क्या काम था उसका, और उससे फायदा क्या क्या हो रहा है रेरा बनने से। ओके, एनी क्वेश्चंस? इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, से नो 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 नो, नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस, सो आई विल गो फॉरवर्ड। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आप क्वेश्चन डालिए, आई विल आंसर द क्वेश्चन। इफ देयर इज नो क्वेश्चन, जस्ट पुट नो क्वेश्चंस। ओके, ग्रेट, नो क्वेश्चंस, आई विल मूव फॉरवर्ड। Okay, so before I go forward, I'll also like to share you one material. Okay, and I will take some time. Just hold on 1 minute. I'll just take 1 minute to pick that material for you. Just 1 minute. Huh? I'm getting a document which basically going to share you all the. It is not showing here. Okay, so now I'll go forward and I'll share you the report. Okay, so Srinivas has one small question. Please feel free to ask question. आपको हिंदी पूछना है, कुछ भी पूछना, प्लीज पूछिए। How does the developer gets the extension period in RERA? Okay, so ये हम आपको बताएंगे, अभी टाइम है इसके लिए। इसके लिए हर स्टेट में अलग अलग तरीके हैं। Srinivas, every state has a different format. In Maharashtra, you have to apply for extension of the project. Okay, normal period is 1 year, and if you want to extend more than that, you have to apply through the RERA bodies. So, go to your website, go to your login. You can directly do extension and put your case. Yes, they have charges. Every delay has charges. Yes, there is charges. Okay, so now look, this data is very important. So it is a data from government, and it's showing the actual state of RERA across India in almost 30 states. The data is of 14/3/2000, almost 2 months, just 2 months back data. So इसमें क्या है, आपका स्टेट कौन सा है, नोटिफाइड रूल हुआ है कि नहीं हुआ है, वहां अथॉरिटी है कि नहीं, परमानेंट मींस देयर इज अथॉरिटी देयर, अपील ट्रिब्यूनल वेयर यू फाइल द केस, तो वो परमानेंट है कि नहीं है, सेटअप वेबसाइट इज देयर और नॉट, why website is important, you can go to website and do all the stuff. Okay, you are from which state, Srinivas? Can you just let me know which state? Okay, वो है वहां पे, और कितने प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हुए हैं एंड कितने एजेंट्स रजिस्टर हुए, वो यहाँ लिखा हुआ है। मुंबई, ओके, सो मुंबई, सो यू आर इन बेसिकली फ्रॉम महारेरा, सो यू विल गेट टू नो। सो अगर आप, मैं सिर्फ टॉप स्टेट्स की बात बताता हूँ यहाँ पे। सो आंध्र प्रदेश में सब कुछ सेटअप हो गया है, 800 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, बट 99 एजेंट्स हैं, दैट इज सरप्राइजिंग। Assam, approximately 150. Bihar is 900 projects. So actually, if you see, Bihar has more projects than Andhra Pradesh. Okay, this is something hard to digest, but it is there. Okay. Then you have Chhattisgarh. Chhattisgarh is very good place to invest. There are more than 1,200 projects, 500 consultants. So if somebody would like to invest, Chhattisgarh is a good place. Okay. Goa, if you see the other, Goa is doing good, 600 projects. Gujarat is, I think, number second largest state in terms of housing, 7,000 projects approximately, and 1,200 agents only. Haryana, if you see, 700 projects.
but more number of consultant. Okay, and more number of cases. 8,509 months, more number of cases. It got solved. Okay, Jharkhand less number, or less than 200. Karnataka 3,300. It is I think third number in India. Kerala very less, surprisingly only 35. Madhya Pradesh is doing good. 2,500 projects are registered. And now Mumbai. In Mumbai, 24,000 projects. It is 40% of entire India's registration. 40%. Maharashtra. And it is very mind-boggling and very strange कि कैसे सिर्फ महाराष्ट्र पूरे इंडिया का 40% रियल एस्टेट देखता है. एंड फॉर 23,000 रियल एस्टेट कंसल्टेंट, मतलब पूरे कंसल्टेंट का ऑलमोस्ट 45% से ज्यादा रियल एस्टेट जो कंसल्टेंट है वो सिर्फ महाराष्ट्र में रहते हैं. दिस इज वेरी अगेन वेरी सरप्राइजिंग. ओके, अकॉर्डिंग टू डेटा. Okay, then you see Odisha. Odisha is also 400. Punjab is 800. Rajasthan 1,200. Tamil Nadu is 1,200. Telangana is 1,200. Uttar Pradesh has a big problem. Uttar Pradesh, if you see, more than 3,000 projects, but same time 16,000 cases, which is got solved. Okay, means every project have more than 5 cases. So number of cases are very high in north part, which is not there in terms of Maharashtra. If you say Maharashtra, okay, the total number of cases is only 7,000. It means 0.25, approximately 0.33% of cases per project, which is very low. If you see Uttar Pradesh, वहां पे एक प्रोजेक्ट के ऊपर 5 केसेस हैं एवरेजली, अगर देखोगे. ऐसा होता नहीं है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू डेटा. वेस्ट बंगाल में नोटिफाई नहीं हुआ अभी. तो अभी पूरे इंडिया में क्या स्टेटस है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि हरियाणा में हमारे 2 रेरा है. एक सिर्फ गुड़गांव में यूज होता है और एक पूरे हरियाणा में यूज होता है. तो हरियाणा है 2 रेरा. थर्ड, you will be surprised to know the government has targeted to implement RERA in Jammu Kashmir also, because now it's a union territory, and Ladakh also. Okay, West Bengal में RERA नहीं है. West Bengal में there is separate law which is called West Bengal Housing Industry Regulation Act. तो ममता दीदी ने अपना एक नया रेगुलेशन बनाया है और वो वहां चलता है. अजिंक नहीं, ऐसा नहीं है. अगर आप देखोगे तो अभिषेक, इफ यू सी बट तेलंगाना, ओके, इसी लास्ट में अभी तेलंगाना में अगर आप देखोगे तो दिस डेटा इज तेलंगाना. Telangana has 1,700 projects and 1,000 cases. Okay, so I was taking the question, Ajinkya Gumble, it is not that the MahaRERA is not taking action. It is not the case. I think MahaRERA has one of the most efficient system in terms of decision making. Let me assure you that. Okay, तो अभी समरी ये है कि पूरे इंडिया में करीब 31 से ज्यादा स्टेट्स हैं जहां पे ये रूल इंप्लीमेंट हुआ है. 30 से ज्यादा स्टेट्स है जहां पे ऑलरेडी लॉ बन चुका है. 24 स्टेट में ट्रिब्यूनल भी है. 25 स्टेट्स के अंदर वेबसाइट है, जाके आप पूरा इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे ले सकते हो. 51,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं जिसमें 24,000 पुणे में, मुंबई में, महाराष्ट्र में है. 40,000 कंसल्टेंट हैं जिसमें कि हमारे पास 25,000 है हमारे महाराष्ट्र में. और अभी तक 44,000 से ज्यादा केसेस MahaRERA में लॉगिन हुए हैं और सॉल्व हुए हैं. अभी ऑलमोस्ट इसके डबल शायद MahaRERA में ऑलरेडी पेंडिंग हो. ओके, बट इट शोज दैट क्या चल रहा है अभी. अजय, यूपी रेरा जो है वो 4th सेशन में आएगा. 4th सेशन में मैं कुछ स्टेट्स के रेरा को सेपरेट डिफाइन करूंगा. आपकी समझ के लिए इतना समझ लो कि महाराष्ट्र का रेरा जो है 90% वही यूपी में इंप्लीमेंट हुआ है. जो 10% वेरिएशन है वो आपको 4th क्लास में आपको मालूम चलेगी. ठीक है अजय जी? ओके, तो वो मैं आपको 4th क्लास में एक सेपरेट सेशन में डिफरेंसेस बताऊंगा. ओके, जैसे मैंने बोला सारा जो रेरा है सबने महाराष्ट्र का ही कॉपी किया हुआ है. तो डोंट वरी, महाराष्ट्र रेरा समझ में आ गया आपको, सबका रेरा समझ में आ जाएगा. Sanjulika, are the big companies registered to RERA? Or yes. So all small big companies need to register to RERA. So आज का जो सेशन है RERA के डिटेल में नहीं है. नेक्स्ट सेशन में we'll go to detail. But everybody, yes, Ajay, you are from Varanasi, great. So सारे जो
लोग हैं उनको रेरा रजिस्टर होना जरूरी है। किस केसेस में होंगे, कैसे होंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में आप देखेंगे। यस, सो वैभव एमपी रेरा भी थर्ड सेशन में क्लियर होगा। तो एमपी, गुजरात, तेलंगाना, फ्यू मोर स्टेट विल बी कवर्ड लास्ट सेशन, वहां जहां पे हम स्टेट रेरास की बात करेंगे। ओके संजुलिका, अभी जैसे से आपका कुछ जैसे से हमारे सेशंस होते हैं, हम पूरे डीप में जाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी आती है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, आज हम बस समझने के लिए आए हैं यहाँ पे कि रेरा का स्टेटस क्या क्या है, स्टेटस, सो दैट हम इस पे अपना नॉलेज को बिल्ड कर पाए, क्या हो रहा है दुनिया में। ओके, डेटा क्या बोलता है। सो आई एम जस्ट स्विचिंग टू प्रेजेंटेशन फास्ट में। सो मैं फास्ट जाऊंगा थोड़ा सा, बिकॉज मुझे लास्ट में एक स्लाइड है जिसपे काफी बोलना है आप लोगों से। सो अभी प्रेजेंट महारेरा में क्या चल रहा है, तो महारेरा में मैं अभी महारेरा जो है उसका कुछ डेटा दे रहा हूँ। ओके, मैंने ऑलरेडी डेटा दिया है। हमारे पास कुल मिला के 24,000 प्रोजेक्ट्स हैं, 23,000 एजेंट्स हैं। ओके, जिसमें कि ऑलमोस्ट जो है 4,000 प्रोजेक्ट जो रजिस्टर हुए थे उनका आपका कंप्लीशन आ चुका है। ठीक है, महारेरा जो है वो दमन द्वीप का भी रेरा देखता है, तो उसका भी डेटा दिया हुआ है। ओके, सो टोटल जो कंप्लेन है अभी तक रिसीव हुई है वो 10,000 कंप्लेन्स है, जिसमें कि 7,000 ऑर्डर पास हुए, तो सिर्फ 30% बचे हुए हैं और केसेस चल रहे हैं। ओके, और अभी एक नया सिस्टम शुरू हुआ है रिकंसिलेशन का। वे आई शेयर विथ यू क्या होता है रिकंसिलेशन। सो महारेरा ने आज के लिए 4 नई चीजें शुरू की हैं जो अभी अदर स्टेट में कॉपी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी सर्टिफिकेट। जैसे आप किसी प्रोडक्ट का क्वालिटी सर्टिफिकेट देते हो, दिस इज अ प्रोडक्ट, you need to give them quality certificate. Now all civil engineers need to give quality certificate of a site. Okay, they just introduced last, I think, a year back, that every site engineer need to give a quality certificate of the site. Every theme and they have to upload that all the work is done according to the quality, and this is very very important for real estate, and I'm very sure this will get followed with other. So आपको quality certificates अभी देने पड़ेंगे आपके civil engineers को। So ये अभी एक नई चीज हुई है, तो इस फॉर्म को कहते हैं फॉर्म 2A, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ओके, सेकंड जो बहुत फोकस कर रहे हैं रेरा, वो है स्किल डेवलपमेंट। वी आर ऑल्सो वर्किंग विद रेरा दैट हाउ वी कैन ट्रेन अदर पीपल। सो अभी वो लोकल लेवल पे लेबर्स को कैसे ट्रेन करना है, मैनेजर्स को कैसे ट्रेन करना है, दे आर लुकिंग इनटू लॉट्स ऑफ थिंग इनटू दैट। सो दे आर फोकसिंग ऑन ट्रेनिंग पेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन, सो दैट बेसिक चीजें जो है उनकी इंप्रूव हो। थर्ड महारेरा ने किया है कि नाउ ऑल द प्रोजेक्ट इज मैप्ड। पहले अगर आप सिर्फ ऑनलाइन डालते थे मेरा प्रोजेक्ट पुणे में, कात्रज में है, इट वाज मोर अ डेटा। अभी आपका सैटेलाइट मैपिंग हो गया है कि कहाँ पे वो प्रोजेक्ट है, कैसे प्रोजेक्ट है। तो उन्होंने जीएस मैपिंग कर ली है और प्रोजेक्ट्स की, एंड अदर स्टेट्स आर आल्सो डूइंग इट। व्हाई? बिकॉज आप हो सकता है कि आप चीट भी कर रहे हो लोगों को, और जीआईएस से आप एक्चुअली पता कर सकते हो कि किस जगह पे कितनी काम चल रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट थे वो रेरा में नहीं आते थे बिकॉज वो कंप्लीट हो गए थे, उनकी कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई थी। बट महारेरा ने बोला है कि अगर आपको कोई भी कंप्लेन है, फिर भी आके हमारे पोर्टल पे उसके बारे में कंप्लेन कर सकते हो। वो क्यों हुआ है? बिकॉज हमारा जो लॉ है रेरा का, वो बोलता है कि 5 साल तक आपको क्वालिटी भी चेंज हुआ होगा तो आपको क्वालिटी करनी पड़ेगी। बट 2017 में जब व्हेन इट गेट लॉन्च्ड, इट लॉन्च्ड, सो दे हैव सेड all the projects who have occupation certificate, they don't need to register with RERA. Okay, so all the project who had occupation certificate, they didn't register with RERA, but they had to comply with this 5-year quality norm. तो 5 साल की गारंटी देनी है उसको। तो 5 साल की गारंटी में किसी को प्रॉब्लम आता है तो को कंप्लेन कहाँ करेगा? तो महारेरा ने बोला है कि भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप साइट पे जाइए, आप कंप्लेन कर सकते हो। तो ये महारेरा ने ये कुछ नई चीजें की हैं जिससे कि कस्टमर को फायदा हो। और क्या किया है, अभी सपोज आपको एक कोई भी कस्टमर है, उसको कोई केस फाइल करना है, कुछ प्रॉब्लम है किसी डेवलपर के पास, वो ऑनलाइन जाता है, ऑनलाइन जाके 5,000 रुपए का फॉर्म भरता है, फॉर्म भर के वो रेरा के पास जाता है और रेरा उसके लिए अपॉइंटमेंट करता है, शेड्यूल करता है ट्रिब्यूनल में, मतलब कोर्ट, एक तरह कोर्ट, कि भाई आप इस वक्त आइए, आपका केस की सुनवाई होगी। महारेरा ने बोला और देखा कि 70-75% जो केसेस हैं वो इसलिए सॉल्व नहीं होती क्योंकि कस्टमर जो है वो डेवलपर से बात ही नहीं कर पाता,
और एक प्लेटफॉर्म पे बैठते ही नहीं वो लोग। सो उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल से जाने से अच्छा है पहले इन लोगों को मिलाया जाए, अगर ये कंसाइल कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो अभी महारेरा ने 6 महीने पहले एक तरीका निकाला कि जिससे आपके एक लोकल बॉडी आपके साथ आएगी, डेवलपर आएगा, कस्टमर आएगा, आप खुद बैठ के बात करो, रिकंसियल करो, अपना काम खत्म करो, आपको केस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और जहां आप 5,000 रुपए देते थे वहां पे आप सिर्फ 1,000 रुपए दोगे। तो अभी आपको डायरेक्टली केस करने की जरूरत नहीं है, आप रिकंसिलिएशन में भी जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि फास्ट अप्रूवल होगा। तो और इसमें भी अगर आप देखोगे तो महारेरा ने 447 केसेस जो थे, ओके, 930 केसेस को रिसीव किया, जिसमें से 440 केसेस का कंसेंट बना और 314 केसेस को उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया। ओके, तो ये बताता है कि गवर्नमेंट और भी तरीके सोच रही है जिससे कि आपका काम बढ़े। तो रिकंसिलिएशन फोरम है जिससे कोई भी कस्टमर गवर्नमेंट में जाने से पहले उसके एक लेवल नीचे से जाकर के कम पैसे में अपना काम कर सकता है। No, so Sachin, 5,000 is not refundable. It is not refundable fees. Okay, currently I have not seen refundable. Okay, withdrawal होता है अगर आपने केस आगे लेके नहीं गए और आपने विड्रॉ कर दिया तो रिफंडेबल है, बट अगर आप केस में चले गए हो तो रिफंडेबल नहीं है। अब अगर आपने विड्रॉ कर दिया तो रिफंडेबल है, एज पर माय नॉलेज। ठीक है सचिन? Abhishek, it is necessary for construction company to be 8-year-old to work for in real estate. No, nothing like this. Okay, you don't have to have any experience, any 8 year, 9 year. Anytime you can start a real estate company, hire people, and you can do RERA registration and you can start construction. Okay, so Abhishek, ये आपको किसने बताया? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? Okay, so ठीक है, ओके। और अभी रेरा क्या कर रहा है, महारेरा जो कर रहा है और बाकी जो लोग देख रहे हैं हमारी तरफ, सबसे यूनिक है क्वालिटी सर्टिफिकेट। ये बोलता है कि अगर आपके साइट पे, आपके प्रोजेक्ट पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, दो तरह की, एक होता है वर्कमैनशिप, मतलब आपका पेंट कैसा लगा, आपका पॉलिश कैसा हुआ है, और दूसरा होता है क्वालिटी ऑफ मटेरियल, आपका इलेक्ट्रिशियन का सामान कैसा है, या हाउ इज योर टाइल्स। सो वर्कमैनशिप एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल, इस पे काफी काम किया है। नाउ फॉर दैट ए सिविल इंजीनियर नीड टू सर्टिफाई। नाउ अभी सपोज you have certified as a civil engineer, you have certified, but after 2 years there is a problem, and there is a constant problem, and now as civil engineer you have to be responsible, and if it happens with you, it means it happens on your site again and again, there is a huge possibility that government can take action on you because you have to sign on every paper. So quality assurance ये शुरू हुआ है, okay, वर्कमैनशिप पे काफी काम चल रहा है जहां पे ट्रेनिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं। Okay, Sri Hari Patak, RERA Karnataka has uploaded all 40 projects on website which are completed 8 years ago. We have given all documents to remove. They are not doing. Okay, so Shirish, I have not seen this thing, but as per my knowledge, if you want to get into real estate, you don't require any experience into it. For government contracting, there is a chances, but as per my understanding, you don't require it. But we'll get back into it and see it. Ajink, we can discuss this later on, one-to-one. Okay, so let's move fast because we have less time. Okay, now यहाँ पे important है. So according to law, okay, one of the most important thing which recently government has implemented in RERA is that if your project is not running, if your project is stuck because of anything, then government can take over the project or RERA can take over the project. Okay, so they can revoke and revocation and completion of the distress project. So they can revoke your RERA license, take over the project and complete it. So now if you see lots of places in North India, UP,
Okay, they have taken out the developer, created a company or taken a company, and they are now doing a project. So now government says if you're not doing your project, they can take out your out from the company and they can appoint someone else. Okay, this is a very unique thing which is just passed in RERA. Okay, and RERA is very serious about it. So revocation and completion of distress project. Now there is one important section, section 7.3 of completion of the project, which says that maximum 1 year of extension is allowed. If you have any problem, you face any problem, technical problem, any problem, justified problem, you can extend till 1 year. Okay, and after 1 year, government said that even if you have a justified reason, we will still able to extend. Why? Because if they revoke the project, then who will do your project? So government also understand that taking out the project from a developer is not the good way to solve any problem. So if you have a genuine problem, if you're delaying it for some other reason, which is very genuine, you will still get extension. So 1 year extension is very common. More extension is possible based on case-to-case scenario. But here, let me tell you one very important factor here. And I ask everyone, suppose you are doing a project of 100 flats, okay? And you know that you will able to complete the construction in 2.5 months and can able to deliver in 36 months. Okay? अभी आप मुझे बताओ कि अभी आप रेरा में यू हैव टू गिव कि ये जो प्रोजेक्ट है जो मेरे हिसाब से 36 मंथ में कंप्लीट होगा, ये कितने मंथ में कंप्लीट होगा? आप क्या डेटा डालोगे? अगर आपको पता है कि 36 मंथ में कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट, तो आप कितना आप डेटा को 36 मंथ ही रखोगे या उसको बढ़ाओगे? क्या करोगे उसको? गिव मी योर आंसर. So my question is, suppose there is a project which you can complete in 36 months and you have to put data in RERA, ki what is the time duration? Are you going to give 36 months only, or are you going to increase the number of months? How much number of months you will increase? This is my question. Kitna increase karoge? Okay. Now, this is the classical problem. भाई आप एक बिजनेसमैन हो, आपने बोला है कि ये प्रोजेक्ट 36 मंथ में कंप्लीट होगा, तो आप 6 मंथ का बाइफरकेशन क्यों, 3 मंथ का बाइफरकेशन क्यों ले रहे हो इतना? ये दिखाता है कि हम बहुत इनएफिशिएंट है एंड हमारा माइंडसेट है कि हमारे प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, कुछ ना कुछ चीजें आएंगी. ओके, और इसकी वजह से हर रेरा प्रोजेक्ट मैंने देखा है, they are basically extended to 20%. It shows that currently our project management capabilities, our construction management capability is not up to the mark. We still fear कि हम टाइम पे प्रोजेक्ट नहीं दे पाएंगे. ओके, आप ही बोल रहे हो 6 महीने, मतलब आप 36 मंथ में ऑलमोस्ट 10%, 20% का गैप. कुछ लोग बोल रहे हैं 1 साल, मतलब 25-30% का गैप. मतलब हाउ यू, अगर आप कल कार खरीदने जाओ, आपने 10 दिन बाद आपको कार मिलने वाली है और आप कार वाला बोले कि नहीं सर 25 दिन और लगेंगे, तो आप बोलोगे क्यों, पॉसिबल ही नहीं है. नाउ दैट इज अ प्रॉब्लम नवदीप. दिस इज नॉट अबाउट कल्चर, दिस इज अबाउट एवरीवन हैज गिवन अ फ्रीडम. अच्छा डिले हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो, हो, बिकॉज प्रोफेशनल लोग नहीं है यहाँ पे. आप बताओ कि जो 6 महीने का डिले है जिसपे ज्यादा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है कस्टमर को, हु विल बियर इट? ओके, और आपका जो पूरा कैलकुलेशन है, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि आपने कैलकुलेट किया है कि भाई मुझको सब कुछ होते हुए भी 36 महीने लगने वाले हैं, फिर ये 6 मंथ का बाइफर क्यों दे रहे हो आप? राइट, ये दिखाता है कि वी स्टिल आर नॉट अप टू द मार्क इन लॉट्स ऑफ थिंग, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. Not every time, okay, not every time, but yes, डेवलपर हैव दिस मेंटालिटी कि यार ये कंस्ट्रक्टर ये वाला वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, इसका डिले हो जाएगा, उसको डिले हो जाएगा, ऐसे. बिल्कुल सही है. एंड आप जब प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हो तो पहले 36 आपने महीने में रख लिया है, आपने रख लिया है, बट जब मैंने आपसे पूछा 36 को कितना बढ़ाओगे, आपने बोला 10-20%. दैट इज अ माइंडसेट प्रॉब्लम. ओके, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम which is very negative for Indian real estate industry.
विल मूव फास्ट. ओके, सो अभी क्या कर सकते हो, जैसे कंप्लेन अगेंस्ट नॉन रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, तो आपका प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड भी नहीं है, फिर भी आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हो. एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर किस कस्टमर का क्या इंक्वायरी था, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, किसका क्या चल रहा है, आप आरटीआई फाइल कर सकते हो और गवर्नमेंट से पूरा डेटा निकाल सकते हो. सी, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, ऐसा नहीं कि मैं इस इंडस्ट्री में नहीं हूँ, मेरी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, तो मैं डायरेक्टली बहुत इन्वॉल्व नहीं रहा हूँ. मेरा मानना ये है, आप एक बात बताओ, आपका सिविल इंजीनियर, आपका आर्किटेक्ट, आपका लॉयर, दे ऑल आर प्रोफेशनल. आपका डिजाइनर, दे ऑल आर प्रोफेशनल. इतने प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं सब एक्सटेंशन. तो आपका सिविल इंजीनियर जो 2 दिन का काम करता है उसमें ऑलरेडी 3 दिन लगा रहा है. आपका आर्किटेक्ट जो 4 दिन में काम करता है उसमें और दिन 5 दिन लगा रहा है. तो आप में जो 36 मंथ है ना, वो ऑलरेडी 20% 30% ज्यादा होकर बोला हुआ है, बिकॉज यही हैबिट है. तो अगर आप देखोगे एक प्रोजेक्ट जो 2 साल में हो सकता है, उसका हमने 4 साल लगाते हैं कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज दिस इज अ हैबिट एंड कल्चर. इट इज नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग. ओके, राइट. सो एक डॉक्टर समझो, डॉक्टर को एक नॉर्मल ऑपरेशन में 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं, तो उसको हैबिट हो जाती है कि भाई किसमें क्या प्रॉब्लम आएगा. तो अगर किसी जगह उसको 4 घंटे लग रहे हैं, ओके, तो वो बहुत अबनॉर्मल सिचुएशन होगी. बट अगर वो 2 घंटे से एवरेज भी आधा घंटा बढ़ाता है, तो पूछ सकते हो क्यों बढ़ाया भाई, क्या प्रॉब्लम हो गया आपको. तो आप प्रोफेशनल से एक्सपेक्ट करते हो कि जो टाइमलाइन दी गई है उस पर स्टक रहो, बल्कि रिड्यूस करके दो टाइम. सो हम इस पर डिबेट कर सकते हैं लेटर ऑन, बट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज. माइंडसेट, एवरीबडी इज टेकिंग टाइम आउट ऑफ इट. ओके, नाउ विल सी फ्यूचर ऑफ महारेरा. महारेरा ने फ्यूचर में क्या करने का सोचा है, अभी उसका क्या टारगेट है. विल गो फास्ट. ओके, सो महारेरा का पहला टारगेट ये है कि इस साल, इस साल वो 1,000 से ज्यादा ऐसे घर जो डिस्ट्रेस में है, जो सेल नहीं हो पा रहे, सॉरी जो बंद हो गए, उनको ले और उनको शुरू करवाए. ये उनका मेजर प्रॉब्लम है, मेजर काम करना चाहती है. अभी जो प्रोजेक्ट बंद हो गए हैं वो कैसे शुरू होंगे, कोई नया डेवलपर आएगा. ओके, और अभी क्या है कि इफ सपोज देयर इज अ प्रोजेक्ट विच इज स्टॉप, तो मिनिमम 51% ऑफ मेंबर्स, पीपल हु बॉट द प्रॉपर्टी, दे नीड टू गिव कंसेंट कि इसको किसको देना चाहिए. ओके, सो ये भी एक लीगल, तो लीगल मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ओके, बट एक लीगल अप्रूवल होने के बाद भी अगर डिले हो रहा है तो इट इज एन इंटरनल सिस्टम. सो रेरा ने फोकस किया है कि हम 1,000 से ज्यादा घर इस साल डिलीवर करेंगे जो रुके पड़े हुए हैं. ओके, उन्होंने फोकस किया है कि 4,000 से ज्यादा, 4,000 प्रोजेक्ट से ज्यादा वो लोग कंप्लीट करेंगे इस साल. ओके, नंबर ऑफ कंसिलेशन बढ़ाएंगे, मतलब क्या, जगह जगह पे कंसिलेशन खोलेंगे, ताकि अगर किसी को करना है तो उसके जिले, उसके डिस्ट्रिक्ट में ही अवेलेबल हो, जैसे नासिक, औरंगाबाद, कोल्हापुर. ट्रेनिंग पे ध्यान देंगे, ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान होगा. एंड टेक्नोलॉजी काफी ध्यान देगी. तो महारेरा में आपको रेरा में जाने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग ऑन टेक्नोलॉजी. एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे, सो दैट वी हैव अ मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ पीपल. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, आई विल टेक कपल ऑफ टाइम टू टेल यू. अगर आप में से कोई भी सोचता है कि मैं रेरा कंसल्टेंट बनना चाहता हूं या बन सकता हूं या क्या चाहिए, तो मैं जो आगे बताने वाला हूं वो आपको हेल्प करेगा रेरा कंसल्टेंट बनने के लिए. ओके, और ये बहुत अच्छा बिजनेस है, बिकॉज रेरा आगे बढ़ने वाला ही है और कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है. ओके, सो अगर आप इन आइडियाज पे, इन प्रोसेसेस पे ध्यान दोगे, अगर आप ये कर सकते हो, तो यू कैन बिकम अ रेरा कंसल्टेंट. अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, डेवलपर हो, तो ये सब चीजें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान कीजिए, टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम रेरा. ओके, वेरी क्लियर अबाउट इट, एंड दिस इज आवर इंटरनल टेक. सो अगर हम सबसे पहले देखें कि करंट जो सिचुएशन रेरा की है, वो ये है कि जिसको जो पकड़ में आ रहा है उसके बारे में सोच रहा था. डेवलपर कुछ और सोच रहा है, कॉन्ट्रैक्टर कुछ और सोच रहा है, रियल स्टेट कस्टमर कुछ और सोच रहा है, कस्टमर छोड़ के मतलब आपका क्या बोलते हैं, ब्रोकर कुछ और सोच रहा है. सब लोग अपने अपने तरीके से रेरा को सोच रहे हैं. रेरा एक हाथी की तरह है, और सब हम लोग सोच रहे हैं कि रेरा क्या है. यही एक प्रॉब्लम है. अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तो ये आप बड़े ध्यान से देखो. आपका जो प्रॉब्लम है वो रेरा नहीं है, वो है आपका कस्टमर. आपका हाथी जो है वो है कस्टमर. हमको कस्टमर फोकस होना है. रेरा किस लिए बनाया गया था, रेरा कस्टमर को सेव करने के लिए. यही फिलॉसफी है रेरा की. अगर आप कस्टमर के बारे में सोचोगे तो आपका जो पूरा फोकस है वो रेरा से हटके कस्टमर पे जाएगा, और आपको रेरा टच भी नहीं करेगा.
आपका हाथी जो है, आपका फोकस रेरा नहीं होना चाहिए, सीखना समझना है, बट आपका फोकस होना चाहिए कस्टमर। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर को कैसे सॉल्व करूं। बिकॉज ये कस्टमर ही है जो केस फाइल करेगा। अगर कस्टमर केस फाइल नहीं करता और आपके पास आता है तो यू हैव ए गुडविल। ओके, सो कस्टमर is your elephant. Try to focus everything on that customer. Okay, your problem will be solved. Okay, so this is the first advice. So whenever think of RERA, think about customer, nothing else. If you think about that, lots of problem will solve. Second, lots of people ask me, sir, RERA से ये इकोनॉमी बढ़ेगी कम होगी, प्रोजेक्ट नहीं हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ कि 1988 में जब शेयर मार्केट में पैसा लगा था, ओके, ठीक है, शेयर मार्केट जब एक पॉइंट पे था 400 पॉइंट पे, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, शेयर मार्केट को अगर बढ़ाना है तो हमको सेबी लाना पड़ेगा। सेबी मतलब जो गवर्न करता है रियल एस्टेट को, सॉरी स्टॉक मार्केट को। तो लोगों ने बोला नहीं, सेबी नहीं आना चाहिए। स्टॉक ब्रोकर ने बोला नहीं होगा, हड़ताल कर दो, बंद कर दो, कैसे करेंगे काम, गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर कर रही है। रेरा जब सेबी आया तो हम 400 पॉइंट पे थे। आज 2017 में, 2 साल पहले 30,000 पॉइंट क्रॉस किए। क्यों किया? क्योंकि सेबी ने कॉन्फिडेंस दिलाया, कॉन्फिडेंस से कस्टमर आया, कस्टमर ज्यादा आया और ज्यादा पैसा डाला उसमें। सेकंड एग्जांपल लेते हैं इंश्योरेंस मार्केट का। पहले इंश्योरेंस लोग कम खरीदते थे, जैसे ही रेगुलेशन आया, ओके, वैसे ही मार्केट तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। ओके, सिर्फ 7 साल में 7 गुना बढ़ गया। अगर आप सेबी देखोगे तो आप देख सकते हो कितना गुना बढ़ा। ओके, तो कोई भी लॉ जो कि मार्केट में कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, वो मार्केट के लिए अच्छा होता है। तो रेरा इज एक बेबी, अभी 3 साल का बेबी है, ये अभी बहुत बड़ा बनेगा। ओके, तो अगर 2017 में अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री 100 पे थी, तो आप ये सोचो 10 साल बाद क्या होगा जब लोगों का और कॉन्फिडेंस होगा। और आज कोविड में, इतने बैड इन्वायरमेंट में, अगर आप मुझसे पूछोगे अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं क्या खरीदूंगा, तो मेरा पहला आंसर होगा रियल एस्टेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं आज के सिचुएशन में रियल एस्टेट में, आप सॉरी नॉट रियल एस्टेट, आपको कहीं भी पैसे लगाने हैं, तो आप कहां पे पैसे लगाओगे? दिस इज वन क्वेश्चन आई लाइक टू आस्क एवरीवन। जस्ट पुट, if you have 20 lakh rupees right now in pocket in this environment, in COVID environment, where you like to put? Gold, stock, equity, oil bonds, कहां पुट करोगे? हाउसेस, रियल एस्टेट, कहां पुट करोगे? Okay, so few people are saying stock, few people are saying real estate industry. आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं तो आपको 20 लाख रुपए के स्टॉक ले खरीदने के लिए इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि पूछो मत। आपको लगता है इतना आसान होगा 20 लाख के स्टॉक खरीदना? अगर आपके पास 20 लाख रुपए है और आपके पास एक सामने प्रॉपर्टी 30 लाख की 20 लाख में मिल रही है, आप तुरंत खरीदोगे उसको। आज के वक्त में जहां घर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज के वक्त में जहां टेंजिबल एसेट होना बहुत जरूरी है, ओके, वहां पे आपको हमेशा एक रियल एस्टेट वैल्यू करता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रियल एस्टेट अभी बढ़ने वाला है, बट मार्केट में अगर आप पैसे हैं तो वो लोग आएंगे मार्केट में, और स्ट्रेस जो रीसेल होता है, स्ट्रेस रियल एस्टेट लोग खरीदेंगे। अभी भी लोग रियल इंडियन माइंडसेट है रियल एस्टेट खरीदने का। ओके, तो बताने का मतलब ये है कि एक लॉ जो है कस्टमर का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है, और कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने से लोग ज्यादा आते हैं, ज्यादा बिजनेस होता है, ज्यादा फायदा होता है। तो रेरा आने से अगर आप देखोगे तो हमको बहुत फायदा होगा। वी आर नॉट गोइंग टू लुक बैकवर्ड्स, वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, सो आप ये सोचो कि आप एक कंसल्टेंट हो और आप किसी रेरा कंपनी को कंसल्ट कर रहे हो। तो देखो, किसी भी रियल एस्टेट, किसी भी कंपनी में 3 चीजें होती हैं। एक होता है प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट वो बेच रहा है, क्या प्रोसेस उसको बेचने का, बनाने का, एंड तीसरा है पीपल, जो पीपल उसको संभालते हैं। तो किसी भी कंपनी के 3, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी बिजनेस केस के 3 बहुत मेजर पार्ट्स हैं, प्रोडक्ट, प्रोसेस और पीपल। हमारे रियल एस्टेट में प्रोडक्ट क्या है? घर। प्रोसेस क्या है? जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हो, किस तरह से घर बना रहे हो, कौन घर बना रहा है, कैसा हो रहा है, एंड पीपल जो उसको चलाते हैं। अगर आप ये तीनों चीज अच्छा करोगे तो आप किसी बिजनेस में पीछे नहीं जाओगे। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोसेस अच्छा है, पीपल अच्छा है, यू विल डू गुड, बेट ऑन इट।
ओके हम इन तीनों में से किसी भी एक चीज में फंस जाते हैं, या तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, या प्रोसेस अच्छा नहीं होता है, पीपल अच्छे नहीं होते। ओके तो हम अभी ये देखते हैं कि हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। तो इस रियल स्टेट एनवायरनमेंट में प्रोडक्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारा घर है, प्रोसेस पे फोकस करते हैं। तो हमको 3 प्रोसेसेस पे फोकस करना पड़ेगा। आपको अपना पूरा ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर सेंट्रिक बनाना है। तो आप देखो कि कैसा हमारा हर व्यक्ति कस्टमर के बारे में सोचे, कस्टमर के बारे में ध्यान जानकारी रखे, उनकी प्रॉब्लम को समझे, उनको सॉल्व करे। चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको समझ में आना चाहिए कि मेरे इस काम करने से कस्टमर को क्या होगा। ओके और कोई कस्टमर का इशू आता है तो कैसे सॉल्व करे, उसको कैसे हैंडल करे। सो कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक। और उसका माइंडसेट होना चाहिए, जो कि हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नहीं है। ओके फर्स्ट। सेकंड, हमारे पास इंटरनल रिकंसिलिएशन प्रोसेस होना चाहिए। इंटरनल मींस क्या? हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने हमारे सारे जो कस्टमर्स हैं उनके प्रॉब्लम्स को पूछो, उनकी जानकारी लो। किसी को प्रॉब्लम है, सीधा डायरेक्टर एमडी से मिलाओ। इफ वी शुड हैव अ इंटरनल पोर्टल। जैसे रेरा का पोर्टल है ना, हमारा इंटरनल पोर्टल होना चाहिए। मेरा सिंपल सजेशन है, अगर आप एक डेवलपर हो, आपका एक वेबसाइट खोलो, वहां पे एक कंसलेशन का टाइप डालो, बोलो कस्टमर को आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप यहां जाके लॉग इन करो। आप यहां जाके लॉग इन करो, हम 7 दिन में रिवर्ट करेंगे। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि सपोज वो आप आपसे खुश नहीं है, वो आपको चाहता है कि फंसाए, और वो जाता रेरा में कि भाई इसने तो मेरा कोई हेल्प नहीं किया, तो आप बोल सकते हो कि सर मेरे पास तो एक रिकंसिलिएशन सिस्टम है, ये बंदा मेरे पास आया ही नहीं, ये बंदे ने कोई डेटा ही नहीं रखा। अगर आप कस्टमर के ट्रांजैक्शन के, कस्टमर के कम्युनिकेशन का डेटा रखोगे, तो आपको कोई भी लॉ छुएगा नहीं। ये बहुत यूनिक बात है। एग्री करते हो तो राइट यस। जब आप कोर्ट में जाओगे तो क्या प्रूफ करोगे कि सर मैंने इसकी बात नहीं सुनी, ये मेरे पास आए नहीं। तो आधा टाइम तो ये चला जाएगा किसने क्या कम्युनिकेट किया है। इसके लिए मेरा सजेशन है कि हर कस्टमर के प्रॉब्लम का ट्रांजैक्शन रखो और देखो कि आपने कब सॉल्व किया है, ताकि जब भी आपको कोर्ट में बुलाया जाए तो आप बोल सकते हो कि सर इसने हमें 7 बार बोला, हमने इसको 7 बार सॉल्व किया, ये हमारे पास आया ही नहीं, इसका ये ट्रांजैक्शन ही नहीं है। तो आपको अपने वेबसाइट पे, अपने सिस्टम में एक इंटरनल रिकंसिलिएशन प्रोसेस बनाना चाहिए। ओके सी, मैक्सिमम डेवलपर को छोड़ो, उसका वाइस प्रेसिडेंट सॉल्व करे यार, उसका उसका और कस्टमर यही प्रॉब्लम है। आप बोल रहे हो कि एक बिल गेट्स में सुनना नहीं चाहता किसी से कि किस तरह का सॉफ्टवेयर बने, यही रियल एस्टेट का प्रॉब्लम है। अगर एक ओनर कस्टमर से नहीं मिलना चाहता, उसको ओनर होने का कोई हक ही नहीं। ओके ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है रियल एस्टेट का और किसी भी सेक्टर का। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो जो सबसे टॉप बॉस सुनना चाहिए आपको, और वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करती है। ठीक है, सो चलो ठीक है, रियल एस्टेट के लोग नहीं सुनते हैं, सीओ लोग, डायरेक्टर नहीं, सीओ तो होगा, कोई डायरेक्टर होगा जो सुन सकता हो, कोई जो भी सुने, उसके लिए इमीडिएट आज के आज ये होना चाहिए कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम हो, ये नंबर पे कॉल करो, आपको कुछ प्रॉब्लम हो यहां जाकर रिकॉर्ड करो, सारे प्रोसेस को रिकॉर्ड करो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी। क्वालिटी के सारे प्रोसेसेस मैप करो। और हमेशा याद रखो कि अभी आपको जब क्वालिटी के बारे में सोच रहे हो, अब ये सोचो कि यार अगर ये 2 साल बाद प्रॉब्लम आया तो मेरा कॉस्ट क्या है। आप एग्जाम्पल के लिए, आपको 2 स्विचेस पसंद है, एक स्विच है 100 रुपए की, एक है 20 रुपए की। ओके बट ये 20 रुपए की स्विच आज अच्छी है, बट अगर ये 2 साल बाद खराब हो गई, इस स्विच को रिपेयर करने का, डैमेज करने का कॉस्ट 400 रुपए है, तो क्या पसंद करोगे? आप बताओ। माई क्वेश्चन टू यू, इफ यू हैव 20 रुपीज स्विच एंड 100 रुपीज स्विच, और अभी ये 20 रुपीज की स्विच आज तो है, आज ये खराब हो गई, और 2 साल बाद ये 400 रुपए का रिवर्क कराएगी, तो आप ये 100 रुपए की स्विच लेना चाहोगे या 100 रुपीज की स्विच लेना चाहोगे? गिव मी आंसर। 100 रुपीज, राइट। सो ये माइंडसेट पहले नहीं था। क्यों? खराब हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, कस्टमर देख लेगा। ओके कुछ नहीं होता, अभी देख लेगा। अभी कस्टमर आपको बोलेगा स्विच खराब है, कंप्लीट करो, ये खराब है, करो। तो आपको आज 5 साल का हिसाब देखना है। मैं एक तो मेरा प्रोडक्ट अब एक 20 रुपए की चीज वैसी बढ़ जाएगी, रिकंसिलेशन मतलब काम करने का अलग से चार्ज। तो अभी तो आपको बहुत चीजें बिल्कुल ध्यान से करनी है। री और वापस करने का कॉस्ट से ज्यादा है डिफॉल्टी का। तो हर जगह पे अपनी कंपनी में प्रोडक्ट, अपनी क्वालिटी का चेक लगाओ, अच्छे प्रोडक्ट्स को लोग देखो, और फ्यूचर में अगर खराब हो जाता है तो कैसे सॉल्व होगा ये देखो। अभी बहुत सारे डेवलपर हैं, वो प्रोडक्ट से बोलते हैं कि भाई आप 5 साल की गारंटी ले लो, खराब हुआ तो आप चेंज कर देना।
ओके, सो आपको देखना पड़ेगा कि रिप्लेसमेंट कैसे की जाएगी। ये इसीलिए क्वालिटी फोकस करना अभी हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो प्रोसेस में चार चीजें, तीन चीजें, कस्टमर सेंट्रिक बनो, सारा डेटा कस्टमर का रखो, मीटिंग करो, उसका रिकंसिलिएशन करो, उससे बात करो, कोई इशू है उसका डेटा कैप्चर करो, एंड तीसरा क्वालिटी पे टैब रखो, हर क्वालिटी को चेक करो, और फ्यूचर में कैसा काम होता है, फ्यूचर में उसका रिवर्क हो सकता है नहीं हो सकता, उस पर टैब रखो। व्हाट इज अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मतलब ये हुआ कि सपोज आपका फैक्ट्री से गलत आया, तो मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री वाला वारंटी देगा कि भाई आपका कुछ डिफेक्ट है तो मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो सपोज आप एक एंकर का वायर लगाते हो और एंकर वायर बोलता है कि भाई 5 साल में कुछ भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर दूंगा। तो अगर आपके कस्टमर बोलता है कि मेरे को एंकर वायर में प्रॉब्लम है, तो आप सॉल्व नहीं करोगे, आप कस्टमर को बोलोगे भाई आप कॉल कर लो सीधा एंकर वायर को, दे विल डू इट। तो आपका कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज जीरो। ठीक है, तो ऐसे क्वालिटी के मटेरियल भी आप डाल सकते हो। जगवार फिटिंग एग्जांपल, राइट एग्जांपल। एंड मैन पावर, ये जो हमारे लोग हैं इनको कैसे अवेयर बनाओगे? आपको सरप्राइज होगा कि हम लॉ के बारे में तभी जानते हैं जब हम लॉ तोड़ते हैं। आर यू एग्री विथ मी? मतलब मुझे ट्रैफिक का लॉ पता नहीं, जिस दिन मैं ट्रैफिक का लॉ तोड़ दूंगा उस दिन पढ़ लेता हूँ क्या ट्रैफिक का लॉ होता है, कैसा लॉ होता है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उससे पहले मुझे कोई मतलब नहीं है। सो वी हैव अ यूनिक थिंग दैट जब तक हम लॉ तोड़ते नहीं, हम उस लॉ के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। राइट, ओके। सो ये हैबिट जो है वो इंडिविजुअल तक सही है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए अगर आप यूएस में देखोगे तो देयर लॉ इज लाइक सबको इससे फॉलो करना है, यू हैव टू मेक श्योर एवरी कंपनी शुड फॉलो इट। ओके, गलती होने के बाद उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो रेरा में सबसे यूनिक बात पता है क्या है? कि कोई भी गलती कर दे डेवलपर जेल में जाएगा। डेवलपर को 3 साल तक की जेल हो सकती है, ब्रोकर को भी जेल हो सकती है और कस्टमर को भी जेल हो सकती है। टेक्निकली जेल नहीं है बट पेनल्टी है उसको। तो सरप्राइजिंगली एक रियल एस्टेट कंपनी में एक आर्किटेक्ट गलती करे या आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर गलती करे, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो सीधा लैंड ओनर, सीधा जो हमारा डेवलपर वो जेल में जाएगा। क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, सब रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, बट अभी लॉ ऐसा नहीं है। तो रेरा ने अभी सबको रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया है, ये एक फ्लॉ है इसमें। ओके, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सबको अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले टेक्निकल कॉम्पिटेंसी अच्छी रखनी है। एवरी रियल एस्टेट कंपनी शुड हैव अ गुड टेक्निकल कॉम्पिटेंसी। आपके सिविल इंजीनियर अच्छे होने चाहिए, आपके मार्केटिंग के लोग अच्छे होने चाहिए, बिकॉज उन्होंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की, आज प्रॉब्लम क्रिएट की, कल आपको उसका पेनल्टी देना पड़ सकता है। सेकेंड, एवरी शुड हैव अ कस्टमर फोकस। आप कस्टमर फोकस एटीट्यूड आपको सारे लोगों का होना चाहिए। आपकी ट्रेनिंग कराओ, आप उनको क्या कहते हैं बुक्स पढ़ने के लिए दो, तो कस्टमर फोकस बनाओ सबको। तीसरा, आपको इंटरनली या तो कोई एक सीनियर पर्सन जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर सकता है या सेपरेट पर्सन, दे शुड बी वर्क एज अ ऑडिट ऑफिसर फॉर रेरा, कि रेरा क्या हो रहा है, लोग डेटा डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, क्या चैलेंजेस है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर आदमी हो जो इसको ट्रैक करे, रेरा के ऊपर ध्यान रखे। ओके, फुल टाइम या पार्ट टाइम। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर एक वर्कर से लेकर के सीईओ तक को रेरा की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेरा की चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये वर्कर को मालूम है कि मैंने ठीक से पेंट नहीं डाला है और मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया है, तो ये हो सकता है कि 6 महीने बाद वापस से काम करना पड़ जाए। ओके, अगर मार्केटिंग वाले ने कुछ गलत बोला है, गलत प्रॉमिस किया है, हो सकता है कि डायरेक्टर को बैकफायर हो जाए। Okay, we have seen couple of real estate brokerage firm in Maharashtra. They have got penalties because उन्होंने उनके कुछ सेल्स वालों ने बिना रजिस्टर किए हुए किसी प्रोजेक्ट को बेचना शुरू कर दिया। ओके, मुंबई में 2-3 केसेस हुए हैं। ओके, जहां पे रेरा जो ब्रोकरेज फर्म है उनको सीधा पेनल्टी दे दी गई। तो आपके एम्प्लॉय प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, आपको पता ही नहीं है। ओके, और बाद में आपको पेमेंट करनी पड़ रही है बिकॉज रेरा आपके नाम पे है। तो हर बंदे को रेरा की अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इफ यू वांट टू बिकम रेरा कंसल्टेंट, ये 8 चीजें आप अगर आप कर सकते हो, क्या 8 चीजें आप कर सकते हो? आप ट्रेनिंग करवा सकते हो रेरा रिलेटेड, आप इंटरनल सेट कैसे कंसलेशन प्रोसेस करेंगे, कैसे सेटअप करेंगे वो कर सकते हो, क्वालिटी का काम कर सकते हो उनके लिए,
ट्रेनिंग कर सकते हो रेरा रिलेटेड, कंप्लायंस का काम कर सकते हो, अवेयरनेस कर सकते हो. अगर कर सकते हो तो आप यू कैन actually work like a RERA consultant to other people, and this is going to be a good task and good you'll get good amount of money for that. Because think एक छोटा डेवलपर जिसके पास 40 फ्लैट है, वो भी तो रेरा रजिस्टर्ड है, बट कहां से वो एक्स्ट्रा बंदा लेके आएगा रेरा के बारे में? तो आप 4 प्रोजेक्ट्स को देखिए, 6 प्रोजेक्ट्स को देखो, सब में ये चीजें को ध्यान रखो. ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. अगर आप नहीं करना चाहते हो, and if you're owner or a developer, use this thing in your organization to make yourself more RERA proactive environment. Okay, so ये मैंने आपको आज का प्रेजेंटेशन खत्म किया. अगर आपका अभी कोई क्वेश्चन है, मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी है. मेरे जो नेक्स्ट सेशन है वो मॉर्निंग में होगा, नेक्स्ट 3 सेशन बिकॉज ऑफ माय शेड्यूल. ओके, सो मॉर्निंग सेशंस के शेड्यूल जाएंगे आपके पास. देयर वी विल डिस्कस रेरा इन डेप्थ. ओके, द नेक्स्ट सेशन विल बी आई थिंक ऑन सैटरडे. ओके, सो मॉर्निंग में 11 o'clock होगा वो. दैट शेड्यूल विल गो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी. RERA is applicable to RERA consultant. I said 3 people. RERA is actually directly applicable to RERA consultant, property buyer, and the RERA developer, and indirectly applicable to anyone who is into real estate. Okay, directly applicable to these 3 and indirectly to everyone. Prashant? Any questions based on this? We will go to deep in next 2-3 sessions. Just to tell you, just to make you aware कि क्या चल रहा है अभी. Yes, consultant need to register. Does consultant? No. If you are not if you are a civil engineer, a civil consultant, you don't need to register with RERA. The developer who will appoint you, they will put your name into RERA, your phone number, email ID. But currently there is no number for civil engineers, architects. But it will come. I am very sure within 1-2 years it will come. RERA will give number to everyone. They will happen. It will happen. Yes. So currently there is going to be QC agreement, quality agreement. You need to give them a quality thing. This is what you're going to give you. This is what you take care. Quality agreement is very simple. Whatever you're giving till 5 years, you have to take care of it. This is what RERA says. Okay. You want to give any manual? Most welcome. Any more questions? I hope you enjoyed today's session. It was basically a very light session. Next sessions will be more theoretical. Okay, right? So wish you all the best and stay safe. Thank you very much. And we'll have a next session on Saturday, 11 o'clock in the morning, where we go to the details of RERA. Okay, thank you very much.